خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت سے یہاں یوں مرقوم ہے: کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، مقدس پالوس رسول روم کی جیل میں ہے، اس کے ساتھ تیموتھیوس اور بھی ساتھی ہو سکتے ہیں۔ اب جیل کی حالت میں اس کے اوپر تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں، غیر یقینی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ جیل کا جو فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ تو ایک ایماندار جو معیاری ایماندار ہے، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ معیاری ایماندار کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ سو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے معیاری ایماندار، جس کے لیے زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ ایک معیاری ایماندار۔ ان آیات میں 3 نکات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ہے جو معیاری ایماندار ہے اس کی مسیحی زندگی کیسی ہے، مسیحی اعتماد کیسا ہے۔ سو مسیحی اعتماد 21ویں آیت میں نظر آتا ہے، اور پھر 22ویں اور 23ویں آیت میں اس معیاری ایماندار کا جو طرز زندگی ہے، جو مسیحی زندگی ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اور 24ویں آیت میں اس معیاری ایماندار کا جو مقصد ہے، زندہ رہنے کا مقصد ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ سو 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن کو آج ہم دیکھیں گے آج کے ڈیووشن میں۔ 21ویں آیت میں کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ ناظرین، جس شخص نے اپنی زندگی خدا کو دے دی، جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح سے ملاقات میں ہوا دمشق کی راہ میں، اب اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر یسوع مسیح کے سپرد کر دی ہوئی ہے۔ اب وہ زندہ رہے یا مرے، وہ مسیح کا ہے۔ اس کے لیے زندہ رہنا یا مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں زندہ رہوں گا تو میں مسیح کے لیے ہوں، اگر مروں گا تو پھر بھی میں مسیح کے پاس جا رہوں گا۔ سو دونوں حالتوں میں وہ خوش ہے، اور اس کا مسیحی اعتماد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنے زندہ رہنے کو مسیح کے لیے اور مرنے کو مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ سو یہی ایماندار کی زندگی ہے جو ہمیں ملتی ہے، کیونکہ جو مسیح کے لیے زندہ رہتا ہے وہ مسیح کے پاس چلا جاتا ہے اس جہان فانی سے رحلت کرنے کے بعد، اور جو مسیح کے پاس چلا جاتا ہے وہی اس کا گین ہوتا ہے، یعنی وہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہی اس کی فائنل عاقبت اور زندگی ہوتی ہے جسے وہ ابدی زندگی کہتا ہے۔ ناظرین، موت نفع اس کے لیے ہے جس نے مسیح میں زندگی بسر کی ہے۔ باقی موت جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ لوگ مرتے ہیں، نقصان میں چلے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن مسیحی موت جو ہے، کیونکہ وہ مسیح میں ہوتی ہے، اس لیے وہ موت نہیں بلکہ نفع میں بدل جاتی ہے۔ سو مقدس پالوس رسول کی زندگی مسیح میں ہے، اور اس کی موت
यसु की कुर्बत, यानी जिस खुदा की आप खिदमत करते आए हैं, आप अगर उसको मिलने जा रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या नफा हो सकता है। लेकिन नफा उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ की है। ये 21वीं आयत है। अब 22वीं और 23वीं आयत में उसने मसीही जिंदगी से मतलब बयान किया है कि मसीही म्यारी जिंदगी क्या है। वो कहता है, लेकिन अगर मेरा जिस्म में रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। वो अब ये फैसला करना चाहता है अपनी जिंदगी में उसकी मसीही जिंदगी कैसी है। वो कह रहा है कि अगर मेरा जिस्म में रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है। अब देखिए, उसने अपनी जात के लिए नहीं कहा कि मेरी जात में मुझे जिंदा रहना है, नहीं, उसने कहा कि मैंने अगर जिंदा रहना है तो मैंने खिदमत करने के लिए जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहना मेरी खिदमत के लिए मुफीद है तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये फैसला अब खुदा ने करना है, मैंने नहीं करना। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। अब मसीही जिंदगी की पसंद या नापसंद जो है वो मसीही के हाथ में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के हाथ में है। यहां एक नई फिलॉसफी बयान की गई है, जो ये है कि मसीही की जिंदगी का इख्तियार मसीही के पास नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं रेहलत करके कूच करके मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, जो बहुत ही बेहतर है। लेकिन उससे पहले कहता है कि मैं फंसा हुआ हूं। और यहां जो फंसा हुआ के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो है सुनैखुमाई। सुनैखुमाई होता है कि आप ऐसी गली में जा रहे हैं जहां दाएं तरफ भी दीवार है और बाएं तरफ भी दीवार है, या आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर बैकवर्ड आप आ सकते हैं। वो कहता है कि मैं मुड़ नहीं सकता, अब मुझे या आगे जाना है या पीछे जाना है, वो भी बैकवर्ड जाना है, वो अबाउट टर्न नहीं कर सकता। यहां पर वो फंस गया है ऐसी दीवारों में जहां पर वो अपना फैसला कर ही नहीं सकता। अब उसका फैसला खुदा करेगा कि उसने कहां को जाना है। सुबह कहता मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं, यानी मसीही की जिंदगी जो होती है वो खुदा के हाथ में होती है। वो फैसला करेगा कि अब क्या करना है। वो कहता मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं, अब मैं फैसला नहीं कर सकता, अब मेरी जिंदगी का फैसला मेरा खुदा करेगा, मेरा यीशु करेगा जो मेरी निजात है। मेरा जी तो चाहता है, आई विश, मैं चाहता हूं कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। नाज़रीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने यहां पर एक नई फिलॉसफी दी है, एक नया रूहानी मेयार दिया है, वो है मसीही मौत का। मसीही मौत को पहले तो वो नफा कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये मेरे लिए बेहतर है मैं कूच कर जाऊं। नाज़रीन, यहां जो कूच करने के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो है एनालूसिस। एनालूसिस जो है ये इंतकाल करना होता है, मरना नहीं होता। अब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मसीहियों को वही बात कह दी है जो यीशु मसीह ने कही है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि वो लड़की मरी नहीं बल्कि सोई हुई है, वो लड़का मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है, लाजर मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है। नाज़रीन, मसीही मौत नहीं होती, बल्कि मसीही खुदावंद यीशु मसीह में सो जाते हैं, क्योंकि जो सो जाता है उसने दोबारा उठना होता है। अब ये मसीही मौत जिसको कूच करना कहते हैं, यानी ट्रांसफर करना, यानी इंतकाल कर जाना। यहां एनालूसिस जो है इसका मतलब होता है इंतकाल कर जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। जब मसीही मरते हैं वो मरते नहीं, सो जाते हैं, और वो उनकी रूह जो होती है वो जमीन से आसमान तक मुंतकिल हो जाती है। वो आसमानी मकामों में जहां हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हम वहां उसके साथ रहते हैं। एनालूसिस को यूनानी ज़बान में 4 तरह से तशहीर किया जाता है। इसकी तशरीह 4 तरह से की जाती है जो बड़ी ही अहम है। एनालूसिस जो मसीही मौत के लिए इस्तेमाल किया गया है, पहली बात है कि कोई ऐसा बैल जिसने सारा दिन कोलू पे काम किया हो या मेहनत मशक्कत की हो और शाम को उसको उस जॉब से, उस काम से आज़ाद किया जाए,
उसको कहते हैं एनालूसिस। यानी मुकद्दस पौलुस रसूल बता रहे हैं कि बिल्कुल वो जो कोहलू का बैल होता है वो सारा दिन काम करता है, लेबर करता है, शाम को जब आजाद हो जाता है, इसी तरह मसीही जो होते हैं वो इस जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए लेबर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, काम करते हैं। और जब वो मौत के करीब आते हैं, सो जाते हैं, तो वो उस बैल की तरह आजाद हो जाते हैं जिसने अपनी जिंदगी में काम किया है और अब वो आजाद हो गए हैं। ये पहला तस्वर है जो मसीही मौत का है। दूसरा है अपने कैंप को दूसरी जगह पर लगा देना। यानी आपने कैंप, जो जिप्सीज होते हैं, जो टपरीवास लोग होते हैं, वो अपने टेंट लगा लेते हैं, वहां बसेरा करते हैं और एक वक्त के बाद वो अपना कैंप उठाते हैं, वो किसी दूसरी जगह पर जाकर लगाते हैं। मसीही मौत होती है एनालिसिस के अपने कैंप को उठाकर जमीन से आसमान पर जाकर लगा दें, ये एनालिसिस होता है। फिर होता है कि जब जो हमारे बहरी जहाज होते हैं उनके किनारे पर लगने के लिए बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, बड़े बड़े एंकर्स जो लगाए इसलिए जाते हैं कि वो स्टेबल रहे वहां पर, और वो एंकर्स उठाए जाते हैं और जहाज जो है वो रवाना होके गहरे समंदर में चला जाता है। इसी तरह से मसीही जिंदगी जो है, जब हम रहलत करते हैं, जब हम सो जाते हैं यीशु मसीह में, जिसे मौत कहा जाता है, जो कि मसीही लफ्ज नहीं है, वो हमारे एंकर्स उठते हैं और हम गहरे में चले जाते हैं। ये हमारा एनालिसिस का तीसरा मकसद है। और चौथा क्या है कि हम किसी भी कैद में हैं, हम किसी भी कैद में हैं, चाहे वो कोई भी कैद है, हम वहां से आजाद हो जाते हैं और वो आजादी जो है वो हमारी मुंतकली यानी इंतकाल का सबब बनती है, हम रहलत कर जाते हैं। सो ये मसीही मौत का तस्वर है जो यहां बयान किया गया है। वो कहता है ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं कूच करके अपने पास जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा बेहतर है। नाजरीन, कैसा मसीही है ये ईमानदार जो एक मेयार दे रहा है कि मेरे लिए जिंदा रहना जो है वो मसीह है, लेकिन मरना तो बहुत ही बेहतर है, वो नफे की बात है। क्यों? कि जिसकी मैंने खिदमत की है अब मैं उसे मिलने जा रहा हूं। ये खूबसूरत ख्याल है। 24वीं आयत, मगर जिसमें रहना तुम्हारी खातर ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी का मकसद बता दिया है कि अगर मैंने जिंदा ही रहना है, अगर मैंने इस जिस्म में रहना है, अगर मैं अभी यीशु के पास नहीं जा रहा, तो फिर मुझे अपने लिए जिंदा नहीं रहना, बल्कि मुझे तुम्हारी खातर, फिलिपियों की कलीसिया की खातर, ताकि उनके ईमान में उनकी तरक्की हो। सो वो फिलिपी की कलीसिया के लिए जिंदा रहना चाहता है। मसीही जिंदगी का मकसद अपने लिए जिंदा रहना नहीं, बल्कि अपने फेलो बिलीवर्स के ईमान के लिए जिंदा रहना, ताकि वो आपके ईमान के वसीले से वो भी ईमान में तरक्की करें और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें और उनकी भी जिंदगियां वैसी ही हों जैसी मुकद्दस पौलुस रसूल की है। नाज़रीन, पौलुस रसूल ने एक मियारी ईमानदार की तस्वीर हमारे सामने पेश की है, जिसकी जिंदगी यीशु मसीह के लिए और मरना उसकी खुशनुदी है, वो उसके साथ गुजारना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ जा रहा हूं, लेकिन वो कहता है अगर मैंने जिंदा ही रहना है तो फिर मैं ईमानदारों के लिए जिंदा हूं, मैं अपने लिए जिंदा नहीं। नाज़रीन, हमें भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह ऐसा ईमानदार बनना है ताकि हम कैसी भी मुश्किल में हो, हमारी जिंदगी यीशु के लिए और हमारी मौत भी यीशु की रफाकत के लिए हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।